Today we are learn about grammar part. Letter writing. Letter writing is one of the part in grammar for the standard of intermediate second year, second language Hindi. In previous class we have discussed about what type of letters are there in Hindi, how many kinds of letters, what are the parts of the letters, etc. That the information we have learned in previous class. Now today we are preparing the how to write the official letters. So that here the two models are there. The one is for the application for the leave letter. Another is a application for that study conduct and the TC. So how to prepare that means in previous class we are discussed that first of all you write the title in any letter, neither this the personal or official or business. The first you write put a margin, and the top of that middle of the margin you write the title of the letter, mean like official letter, means application, leave letter, requesting letter, in the memo, etc. Here then afterwards in official means should write the top of the right side column. Here start the letter, the date, then here put a comma, and then that down of equivalent of that letter date should write here mention the place. Then afterwards the equally from the margin side you write here Sambodhan means here address to envelope, means the to address. Here in to address means 4 steps are there, mean address to whom, like here the principal, to the principal, means in which college, here means you write your name of the college and where is the venue of that the street of the college, then venue of the place of the college, mean the 4 steps are there. In the middle of the letter, the paper, here write the subject. Here subject means here in Hindi the Vishay. Here write the subject, the matter, the short name, mean here 3 दिन की छुट्टी के लिए requesting 3 days leave permission, recording in English, like the same in Hindi 3 दिन की छुट्टी के लिए निवेदन. Then afterwards here from margin side here write Sambodhan, here requesting word, that's a Mahoday. My ask say, or the body of the letter is very simply, you not mention the unnecessary matter, you are not expand the body of the letter. You write here main points of the letter, aim of why you are applying that. Here, मैं आज से 3 दिन तक महाविद्यालय नहीं आ सकता हूँ. I am unable to attend the college for 3 days. For 3 days. मैं आज से mean today onwards. मैं आज से 3 दिन तक mean up to 3 days अने क्या होता है महाविद्यालय नहीं आ सकता हूँ. I am unable to attend the classes for 3 days. अने college or classes you say anyone. क्योंकि why because मुझे ज़रूरी काम से हैदराबाद जाना है. Why because I am going to Hyderabad with my personal work. मेरी ज़रूरी काम से मुझे ज़रूरी काम से हैदराबाद जाना है. I want to go Hyderabad with my personal work. कृपया 3 दिन की छुट्टी के लिए कष्ट देने का कष्ट करें. Hence I request to you, please grant my leave permission for 3 days. You write conclusion point. In Hindi, कृपया mean requesting word. Hence I request you, like that. In a कृपया use in Hindi.
यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर 3 days लीव परमिशन देने का कष्ट करें। ग्रांट माई लीव परमिशन और गिव द परमिशन फॉर 3 days लीव। ओके, धन्यवाद। लास्ट कंक्लूजन, जिसको हम समापन कहते हैं। ये संबोधन है, इसके बाद समापन है, ये विषय है। यानी धन्यवाद इज थैंकिंग यू लाइक इन इंग्लिश, सेम वे इन हिंदी धन्यवाद। हियर मिडिल ऑफ द पेज यू राइट धन्यवाद। दिस यार इन ऑर्डर दैट ट्रू ऑर्डर्स मीन्स सेवा के निचले 4 एक ही क्रम में लिखनी चाहिए, जिसके कॉमा 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 एंड फुल स्टॉप, है ना। इस प्रकार से ये विषय जो होता है, ये विषय कहाँ लिखनी चाहिए, यानी पेज के सेंटर में मिडिल पॉइंट में लिखनी चाहिए। लिख के इसके संबोधन के साथ इसका यदि ये समापन नहीं हुआ तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर समापन कर देनी चाहिए। मीन ये subject you are mentioned in the middle of the page, it's a separate title, it's all the titles you are focusing at properly as a bound letters. Mean appearance of the letter is a good, mean what you write is not important, but how to write and how much write. How much write means what you write the properly, how to frame the sentence is very important. इस प्रकार से इसका होना चाहिए। संबोधन के रूप हुआ, समापन हो गया। आपका आज्ञाकारी छात्र जैसे लिखकर यहाँ पे क्या चाहिए, ये नहीं नाम बोल के नाम नहीं लिखनी चाहिए, नाम शब्द लिखकर इंटू मार्क दे देनी चाहिए। ये जो होता है ये छुट्टी पत्र का ये जो है ढांचा या एक नमूना है। और इसी प्रकार से यहाँ पे पत्र लेखन के लिखते समय ये दोनों बराबर का रूप होनी चाहिए। यहाँ पे चाहे डेट हो, दिनांक हो, या डेट आर द प्लेस। इफ यू राइट यानी फर्स्ट स्टेप इधर से कॉमा ends with comma and another last one and another second step is should write a complete full stop. Is it neither that the personal letter means place will come out upside and the downside is the date. When यहाँ पर निजी पत्र है तो यहाँ पर स्थान होगा, उसके निचले भाग में बराबरी का स्थान देते हुए यहाँ पर दिनांक होता है। यहाँ पे चाहे स्थान हो या दिनांक हो, ऊपरी विषय के अंतर्गत कामा के साथ अल्प विराम के साथ इसका समापन करने चाहिए। और इसके साथ या निचली भाग में जो भी होता है उसके साथ पूर्ण विराम देनी चाहिए। इफ यू राइट हियर इन हिंदी सो हियर फुल स्टॉप एज ए हिंदी फुल स्टॉप। इफ यू आर मेंशन द डेट इन दैट आवर रोमन नंबर्स मीन इंग्लिश नंबर्स, so should I put a comma here, full stop as a full stop, right। अब दूसरा पत्र जो होता है आवेदन पत्र में रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड द बोनाफाइड आर से स्टडी कंडक्ट। यहाँ पर दिया उच्च शिक्षा के लिए टीसी यानी स्थानांतरण पत्र, स्थानांतरण में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसे टीसी शॉर्ट वे टी फॉर ट्रांसफर, सी फॉर सर्टिफिकेट, यानी स्थानांतरण पत्र इसको हिंदी माध्यम में कहा जाता है। तथा नॉट ओनली दैट इज अनदर वी नीड अनदर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज। द शैक्षणिक प्रमाण पत्र मीन्स इससे बोनाफाइड, FIED बोनाफाइड सर्टिफिकेट, राइट। यार शैक्षणिक आणि प्रमाण पत्र मीन्स यार द सर्टिफिकेट, शैक्षिक मीन्स बोनाफाइड लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आवेदन पत्र मीन अप्लाई द रिक्वेस्टिंग अप्लाई फॉर इधर स्टडी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड द बोनाफाइड। या आस्किंग गिवन ए क्वेश्चन टू यू इन आवर एग्जामिनेशन also you given the same question and like this only. So at the time how to prepare the attempt this question means you are in our answer sheet put a margin here, already margin there in our answer sheet. First of all the start in separate page means you are top of the page you are margin, you write mention the title means as a application in English, you are Hindi आवेदन पत्र the same way.
ये आवेदन पत्र application means in official letter. The official letter means you should mention the first date then place. If in case your personal letter mean letter to friend or letter to father, at the time what can you do? You are mention the place first then date. But here this in our question is a application means is the official means first date and then place. What may be your date or place? The top of the main margin side you say you should write your comma. End of the top side means margin side sentence ends with a comma. Next that downward equally is that sentence ends with a फुल स्टॉप. मैंने हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं, इसको पूर्ण विराम कहते हैं. हिंदी के पत्र लेखन के लिखते समय वो कार्यालय संबंधी पत्र है मात्र से उन्हें दिनांक लिखनी चाहिए, चाहे वो दिनांक हिंदी के अंकावली के साथ में या तो अंग्रेजी के अंकावली के साथ में भी रोमन नंबर में भी लिखा जा सकता है. जैसे यहाँ पर बताया गया यह हिंदी की अंकावली है, यहाँ पर अंग्रेजी के अंकन बताई गई. चाहे कैसे भी लिखें तो यहाँ पर ends with a comma. Then either parallelly start the place and that place ends with a full stop. माने इसके निचली भाग से दिनांक के निचली भाग से क्या करनी चाहिए? पूर्ण विराम. नलगोंडा का स्थान का लिखना है, नलगोंडा ही लिखना अनिवार्य नहीं है. किसी भी स्थान जहाँ जिस स्थान से लिखा जा रहा है तो उस स्थान का नाम लिखनी चाहिए. ये पूर्ण विराम है ना. तो उसके बाद जो होता है माने ये जिसको हम मार्जिन कहते हैं, जिसको हम हाइशिया कहते हैं, ये हाइशिया के बराबर से सेवा में लिखनी चाहिए. मेन एड्रेस टू एनवलप, एड्रेस टू अप्लाई टू होम, मैंने ये सेवा में लिख के थोड़ा सा इसको कॉमा देनी चाहिए. इसके निचली भाग से श्रीमान प्राचार्य जी, मेन एड्रेस मीन्स यार अप्लाई टू प्रिंसिपल. यहाँ पे श्रीमान प्राचार्य जी, प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल, मेन ये रेस्पेक्टिव वर्ड है. ये कहाँ के प्राचार्य हैं? तो अल्फा महाविद्यालय, महाविद्यालय माने से जिसको हम कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं. विद्यालय मीन्स स्कूल, महाविद्यालय मीन्स कॉलेज, विश्वविद्यालय मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सिटी. इसी प्रकार से अल्फा महाविद्यालय यानी कॉलेज का प्रिंसिपल. विच कॉलेज? यार मीन्स यार अल्फा कॉलेज. यू आर नॉट ओनली मेंशन दैट पर्टिकुलरली अल्फा, एनी कॉलेज इफ यू आर वांट यू शुड राइट हियर. देन हियर that's a street where that said stable in that college means the Ramagiri. Then when you place is a place is Nalgonda, isn't? If you are what you mentioned here Nalgonda, here also mentioned Nalgonda. Here Alero, here mentioned that Aler. Here Hyderabad means here also Hyderabad only. Then any cause you write here how many steps here? 4 steps are there. Here every step will be ends with comma comma. Then another last one is it's with full stop. Then here subject, come to that point that middle, the subject means what you write in the middle of the page you start the term of word with subject, जिसको हिंदी माध्यम में विषय कहते हैं. इसके निचली भाग में विषय के संबंधी किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे लिखना चाहिए. what you want, why you are apply the certificate or application means you should write your subject your particular subjects you mention in that title of subject. उच्च शिक्षा के लिए स्थानांतरण पत्र के लिए, just like here in giving the question to you, what asking that only you attempt your write application. उच्च शिक्षा के लिए स्थानांतरण और शैक्षणिक प्रमाण पत्र के लिए निवेदन means request. यार requesting for in हिंदी अंग्रेजी माध्यम में requesting for or requesting for transfer and bona fide certificate for what one? हायर एजुकेशन, राइट. उच्च शिक्षा के लिए स्थानांतरण पत्र, ये जो होता है स्थानांतरण मीन्स टीसी या शैक्षणिक मीन्स बोनाफाइड FIED. और इसे सिंपली यार व्हाट यू राइट यार स्टडी कंडक्ट
राइट, कंडक्ट सर्टिफिकेट यू से। सो प्रमाण पत्र के अब उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है महोदय और माननीय महोदय, ये कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट यूर इन इंग्लिश योर सर रिक्वेस्ट सर रेवरेंड सर लाइक दिस वन। हियर आल्सो देयर मेंशन्ड योर रेस्पेक्टिव वर्ड। हियर आपसे निवेदन है कि मीन requesting to you means who are you means that name of the principal apply that apply to principal means निवेदन है कि मैंने आपके महाविद्यालय से MPC यानी ग्रुप यानी इसको वर्ग भी कहा जा सकता है द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण किया है। मैंने उत्तीर्ण किया है किसमें, किस कक्षा में? अरे ग्रुप से मैंने द्वितीय वर्ष means second year in which group? MPC. Like this anyone should write here where I complete my study in your college as a group of MPC in second year. Like this in English the same way in Hindi आपके महाविद्यालय से mean as your kind control college MPC group as per the second year MP with MPC group वो उत्तीर्ण किया है। I passed my intermediate second year with a group of MPC in your college. Like this in formation of the sentence in different language in different way। मैंने हिंदी माध्यम में यानी जैसा लिखा जाता है अंग्रेजी में उसका परिवर्तन थोड़ा सा वाक्य की लिखावट बदल जाती है ना, परिवर्तन होगा। क्या है उच्च शिक्षा के लिए यानी मुझे स्थानांतरण पत्र और मेरा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। So I complete my the course intermediate and a second year course I passed means completed course. So I want to my transfer certificate and study conduct for my higher education. You write clearly as your body body of the letter. So okay, so यहाँ पर क्या करें उच्च शिक्षा के लिए उत्तीर्ण तो हुए लेकिन क्या किस विषय के बारे में उत्तीर्ण होने का संदेश दिया है? मैंने उच्च शिक्षा के लिए मेरे क्या आवश्यकता है? दो प्रमाण पत्र हैं। प्रमाण पत्र मीन्स सर्टिफिकेट, दो प्रमाण पत्र चाहिए। कौन सी वाला? एक है स्थानांतरण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये दोनों पत्रों की आवश्यकता है। I need both certificate like transfer certificate and study conduct. You say that bona fide also. So कृपया in that page change the paragraph. Your first paragraph is when you are started the same downward in second paragraph also same started in the same way in this equal space. यानी कृपया उपयुक्त विषय के लिए अनुमति प्रदान करें। मैंने यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कृपया मीन्स क्या बताया गया? Hence I request you है ना उपयुक्त विषय एज अबो सब्जेक्ट के लिए अनुमति प्रदान करें। गिव परमिशन एज अबो सब्जेक्ट इन इंग्लिश या जैसे term the change the term in a terminology in English to Hindi. Why? Because in each every language the formation sentence will be in different way. So in Hindi what you say कृपया उपयुक्त विषय के लिए अनुमति प्रदान करें। The same the term sentence you are asking in English means hence I request you please grant my leave permission means as above subject. Leave permission is not but here leave permission means transfer means you leave the college. That's okay. That's why you can write the term also. Here say simply please give permission as above subject. Hence I kindly request, hence I request to you please grant my above permission as above subject or permission for as above subject you say in English. But your conclusion point is thanking you in English. The same way in Hindi you write
धन्यवाद, हिंदी माध्यम में धन्यवाद के रूप में लिखनी चाहिए। इसका समापन जो होता है आपका आज्ञाकारी छात्र लिख के निचले यहाँ पर आवेदन के लिखते समय नाम और क्रम संख्या जो के लिखना है, लिख के इंटू मार्क देना है। यू आर नॉट प्रॉपर योर नेम और रोल नंबर, बट यू आर मेंशन दैट नेम एंड योर रोल नंबर, द टर्म ऑफ द बोथ, बट यू नॉट मेंशन द प्रॉपर नेम और नंबर हियर। सो इस प्रकार से आवेदन पत्र के लिखते समय दिनांक पहले लिखनी चाहिए, उसके निचले भाग में नलगोंडा लिखनी चाहिए। दिनांक जो लिखा जाता है ऊपरी भाग में उसका समापन में अल्प विराम के साथ होनी चाहिए, और जो नलगोंडा जो स्थान लिखा जाता है वो दिनांक के निचले भाग में इसका जो समापन होता है पूर्ण विराम के साथ होनी चाहिए। हर मुख्य शीर्षक जो होता है उसके मार्जिन के ऑफ साइड में मिडिल में इसको लिखनी चाहिए। उसके बाद मार्जिन साइड से माने हाइशिया कहते हैं इसको, इसके से जोड़ते हुए सेवा में लिखनी चाहिए। सेवा में के निचले भाग में 4 स्तर होने चाहिए, जैसे श्रीमान प्राचार्य जी अल्फा महाविद्यालय रामगिरी नलगोंडा, यानी यह एड्रेसिंग जो होता है वो जो 4 स्टेप में होनी चाहिए। हर सेंटेंस का स्टेप जो होता है कॉमा के साथ में समापन, जिसको हिंदी माध्यम में अल्प विराम कहते हैं, इसका स्थान के संबंधी पूर्ण विराम लिखनी चाहिए। टोटली 4 स्टेप्स, 1 by 1 इज द इक्वली द आफ्टर द पैरेलल ऑफ द एड्रेसिंग, राइट। इसके बाद जो होता है विषय जो लिखा गया उच्च शिक्षा के लिए स्थानांतर पत्र, जैसे प्रश्न में जो दिया गया वो शब्द क्या है विषय के अंतर्गत लिखा जाता है। और महाविद्यालय यानी के संबंधी जो होता है मान्य महोदय और महोदय, जस्ट लाइक इन इंग्लिश sir, respected sir, reverend sir, like that you are comparing of the respective word, should write in Hindi महोदय और मान्य महोदय। See here, यहाँ पे जो लिखा गया है वो यहाँ पे महोदय लिखा गया है, और यहाँ पे जो लिखा गया मान्य महोदय, कुछ भी पूज्य महोदय मान्य महोदय बद लिखा जा सकता है। आपसे निवेदन है कि जैसे सिंपली लेटर के लिखते समय, पत्र के लिखते समय क्या करनी चाहिए, वो अनावश्यक शब्द को विषय को नहीं जोड़नी चाहिए, माने इसका जो विषय को विस्तार नहीं करनी चाहिए। संक्षिप्त में अपने उद्देश्य जो होता है वो उस उद्देश्य से संबंधित वाक्य मात्र ही लिखने चाहिए। जैसे आपसे निवेदन है कि मैंने आपके महाविद्यालय से एमपीसी ग्रुप के वर्ग द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण किया है, इस प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इन्हें निम्न प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये दूसरा वाला विषय। टोटली हाउ मेनी पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स आर देयर, इन ईच पैराग्राफ कंटेनिंग ऑफ 1 or 2 sentences only, short and sweet and brief matter is frame in body of the letter, right। तो इस यहाँ पे मुख्य विषय जो लिखा जाता है वह संक्षिप्त में लिखनी चाहिए। इसके बाद धन्यवाद के रूप में इसका समापन करनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस पर्सनल ऑफिशियल मीन्स, ऑफिशियल में दो अनुवृत्तियाँ होती हैं, जो निजी पत्र के अंतर्गत 3 अनुवृत्तियाँ होती हैं। 3 पैराग्राफ्स इन पर्सनल लेटर, मीन ऑफिशियल लेटर मीन्स just 2 paragraph. The last one is a right conclusion, but is the in personal letters there is no conclusion. You write your wishes. Okay, this is the in next period we can be start how to prepare the personal letters, and then you compare, mean what is the difference and the personal and official। आज ये जो है औपचारिक के अंतर्गत ये कार्यालय संबंधी पत्र हैं। औपचारिक के अंतर्गत व्यवहारिक का आता है और यहाँ पर कार्यालय आते हैं। यहाँ पर ये जो है कार्यालय से संबंधित हैं, है ना। ये व्यवहार जो होता है छुट्टी पत्र में ऐसे भी बताया कार्यालय संबंधी है। तो ये है विषय पत्र लेखन का, इसका अच्छा सा अध्ययन करें, जो कुछ जैसा बताया गया उसका पूर्ण संपूर्ण रूप से इसका प्रयोग करने चाहिए। निश्चित स्थानों में निश्चित शब्द का प्रयोग करना पत्र लेखन के अंतर्गत अनिवार्य है ना। इस प्रकार से आप अपना पत्र लेखन का प्रयोग करें लिखावट के अंदर।